Now, after ratio, we have next topic which is proportion. तो हमने पहला टॉपिक पढ़ा वो था रेशियो, और अब नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इट इज प्रपोर्शन. जैसा हमने पहले बताया था कि वी हैव 4 टॉपिक्स इन दिस चैप्टर: रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉगरिथम. तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रपोर्शन. तो व्हाट इज द प्रपोर्शन? एक सिंपल डेफिनेशन: एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रपोर्शन. तो प्रोपोर्शन क्या है? तो प्रोपोर्शन इज एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज. अगर आपके पास दो रेशियो इस तरह से हैं कि दीज टू आर इक्वल, देन वी से देयर टर्म्स आर इन proportion. अब फॉर एग्जांपल लेट टू रेशियोज a is to b and c is to d are such that, तो हमारे पास दो रेशियोज हैं a is to b और c is to d, और इस तरह से हैं कि a is to b is equal to c is to d. a is to b is equal to c is to d. That means two ratios are equal. Then we say four terms. तो यहाँ चार टर्म दिख रही हैं a b c d. तो then we say four terms a b c and d are in proportion. तो ये जो चार टर्म लिखी हमने a b c d, इसको क्या कहेंगे? These four terms are in proportion. In a is to b is equal to c is to d. A and d are called extreme values. So remember, first and last is called extreme values, while b and c yani middle two terms are called mean values. So always remember, if a is to b is equal to c is to d, so then then first and last is called extreme values, while and middle two values is called mean values. Ab next, if a is to b is equal to c is to d, suppose that a is to b is equal to c is to d, then by the definition of ratio, a is to b means a upon b, c is to d c upon d. Now we make cross multiplication. तो a into d is equal to b into c. तो अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? a into d और ये b into c. तो which is called cross product rule. It is called cross product rule. That means a और d आपको जैसा हमने यहाँ लिख के दिया एक्सट्रीम वैल्यूज है, b and c कैसी वैल्यूज है? मीन वैल्यूज है. तो that means प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. यानी कि कहने का मतलब है कि if a is to b is equal to c is to d, then a into d यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम is equal to b into c, that means प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज. तो ये तो रहा हमारे पास एक सिंपल डेफिनेशन प्रोपोर्शन का. अब नेक्स्ट इसके लिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. Important properties. Property number 1: if three terms a, b and c are in proportion. Suppose that हमारे पास सिर्फ तीन ही टर्म a, b, c और बोला क्या है? They are in proportion. Then we can write a is to b is equal to b is to c. So then we repeat second term. आप देख सकते हैं हमने क्या लिखा? a is to b and again we repeat b. So b is to c. Now a is to b means a upon b. b is to c means b upon c. Now we make cross multiplication. Then we have a into c is equal to b into b. Therefore ac is equal to b square. Therefore b square is equal to ac. Therefore if we make square root of opposite side, then b is equal to root of ac. So here b is called mean proportion of a and c. Very important property. कई बार आपके यहाँ इस तरह का सम पूछा गया, what is the mean proportion of. तो दो नंबर आपको दे दिया जाएगा और उसका मीन प्रोपोर्शन आपसे पूछा जाता है. तो रिमेंबर, इफ वी हैव टू राइट मीन प्रोपोर्शन ऑफ टू नंबर्स a and c, then it is root of ac. तो always remember, mean proportion of two numbers a and c is root of ac. For example, mean proportion of 4 and 16. तो अगर आपको 4 और 16 का मीन प्रोपोर्शन लिखना है तो that means root of 4 into 16, and 16 4 जा 64 and square root of 64 is equal to 8. तो ये रहा हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी फॉर प्रपोर्शन. नेक्स्ट प्रॉपर्टी which is property number 2: if a is to b is equal to c is to d, then as usual a upon b is equal to c upon d. if we take reciprocal of both sides, तो आप देख सकते हैं we can take reciprocal of both sides, that means 1 upon a upon b, 1 upon c upon d. तो आप अगर इसको चेंज करेंगे तो b moves in the numerator and d moves in the numerator.
and a and c remains in denominator, so that is why we have b upon a is equal to d upon c. तो therefore b is to a is equal to d is to c. तो आप देख सकते हैं a और b का पोजीशन चेंज हुआ, c और d का पोजीशन चेंज हुआ, और आपको मालूम है कि जब a is to b को आप b is to a लिखते हैं then it is called inverse ratio. तो that is why this property is called invertendo rule. तो ये हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, invertendo rule. So if we have a is to b is equal to c is to d, then we also write b is to a is equal to d is to c, which is called invertendo rule. Next, if a is to b is equal to c is to d, so then definitely we have to write a upon b is equal to c upon d. If we interchange position of b and c, आप देख सकते हैं हमने एक डबल हेड एरो मार्क किया है, c moves towards b and b goes position of c. तो अगर आप देखें ये आपस में इंटरचेंज हो जाए तो क्या रह जाएगा, a upon c is equal to b upon d. तो therefore a is to c is equal to b is to d. तो आप देख सकते हैं जहां पर हमने पहला ओरिजिनल लिखा था a is to b is equal to c is to d, कन्वर्ट होके आ गया a is to c is equal to b is to d. तो here पोजीशन ऑफ b एंड c अल्टर्स, यानी कि b और c का सिर्फ पोजीशन बदल रहा है या अल्टर कर रहा है, therefore it is called alternando rule. तो ये आ गया प्रॉपर्टी नंबर 3, alternando rule, यानी कि we can interchange middle two positions. Next we have property number 4. If a is to b is equal to c is to d, so therefore a upon b is equal to c upon d. We add both sides 1, then a upon b plus 1 is equal to c upon d plus 1, which is क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या रह जाएगा, a plus b upon b, c plus d upon d. हमने इसको मार्क करके रखा है इक्वेशन 1 क्योंकि इसको मैं प्रॉपर्टी नंबर 6 में यूज करूंगा. आफ्टर दैट दिस टर्म इज आल्सो रिटन एज a plus b is to b, c plus d is to d. तो इट इज कॉल्ड कंपोनेंडो रूल. तो ये जो हमारे पास आ रहा है इसमें क्या बोल रहे हैं हम इसको, कंपोनेंडो, यानी कि जो न्यूमरेटर है उसमें डिनोमिनेटर को ऐड कर सकते हैं जबकि b डिनोमिनेटर एज इट इज रह जाएगा. तो अब इसी तरह से अगर आप -1 कर दें फिफ्थ प्रॉपर्टी में तो आपके पास आ जाएगा a minus b upon b, c minus d upon d, यानी कि a minus b is to b is equal to c minus d is to d. तो इट इज कॉल्ड डिविडेंडो रूल. तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 नोट करके रखा है इस प्रॉपर्टी में, जिसे मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6 में यूज करूंगा और एक नया रूल आएगा हमारे पास, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल. तो ये हमारे पास 5 हो गए. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 7 क्या प्रॉपर्टीज है. Property number 6. If a is to b is equal to c is to d, then a plus b upon b is equal to c plus d upon d. Equation 1 from property number 4, वहां मैंने मार्क किया था. a minus b upon b is equal to c minus d upon d. Equation number 2 from 5, जैसा हमने पिछले दो प्रॉपर्टीज में लिखा था. Now we divide equation 1 by equation 2. So therefore a plus b upon b is equal to a minus b upon b. लेफ्ट साइड के बाद राइट साइड अपने पास c plus d upon d upon c minus d upon d. b to b cancel, d to d cancel. Therefore a plus b upon a minus b and c plus d upon c minus d. It is called componendo and dividendo rule. तो अगर आपके पास है a is to b is equal to c is to d, then it is also written as a plus b upon a minus b is equal to c plus d upon c minus d. तो आप यहाँ पर ये टर्म भी नोट कर सकते हैं, which is called componendo and dividendo rule. Now property number 7. If a upon b is equal to c upon d is equal to e upon f is equal to dash dash dash, मतलब हमारे पास बहुत सारे रेशियोज इक्वल हैं या फिर फ्रैक्शन इक्वल हैं, then a upon b is equal to c upon d is equal to e upon f. और हमने उन सबको कंसीडर कर लिया है कि से, यानी कि मैंने अपनी तरफ से अज्यूम किया these fractions is equal to k. Now we take first and last, second and last, third and last equal. तो इस तरह से हमने इक्वल किया तो अपने पास क्या आ गया, a upon b is equal to k, c upon d is equal to k, e upon f is equal to k. Now we make cross multiplications for denominator, then we have a is equal to bk, c is equal to dk,
E is equal to FK. Now we adding these term. ये जो अपने पास लास्ट आ रहा है इन सबको ऐड करते हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा A प्लस C प्लस E डैश 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 इक्वल टू BK प्लस DK प्लस FK प्लस डैश डैश डैश. आप यहाँ पर राइट साइड से देख सकते हैं each and every term contains K. We take K common. तो that means K into B plus D plus F and so on. अब अगर आप इस B plus D plus F को डिवाइड में ले लें तो therefore A plus C plus E dash 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 upon B plus D plus F plus dash dash equal to K. बट आपने K किसको कंसीडर किया था? A upon B is equal to C upon D is equal to E upon F. तो इसका मतलब हुआ आप K की जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं. तो therefore we have A upon B is equal to C upon D is equal to E upon F equal to A plus C plus E dash dash B plus D plus F dash dash. यानी कि न्यूमरेटर्स आपस में ऐड हो जाएंगे, डिनोमिनेटर आपस में ऐड हो जाएंगे. यानी कि आप अगर इस तरह से फ्रैक्शंस इक्वल हैं तो आप उनके न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं और नीचे डिनोमिनेटर को ऐड किया जा सकता है. इट इज कॉल्ड एडेंडो रूल. तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 7 व्हिच इज एडेंडो रूल. सेम अगर आप यहाँ पर ऑन एडिंग की जगह माइनस कर दें तो देन वी हैव A minus C minus E and so on, B minus D minus F and so on. तो यानी कि दोनों तरफ माइनस आ जाएगा which is called subtrahendo rule. Remember जैसा एडेंडो रूल है वैसा ही अपने पास क्या होता है subtrahendo, जो कि वर्ड आ रहा है subtract से. तो subtrahendo रूल आपके पास सेम आ जाएगा. तो it is an important properties for proportion. Now we have exercise 1B. So exercise first B, first question, the 4 proportional to 4, 6, 8 is. So let 4 proportional is x. तो हमको पूछा क्या 4, 6, 8 का 4th proportional यानी 4th टर्म क्या है. तो let it is x. तो therefore 4 is to 6 is equal to 8 is to x as usual. हमने यहाँ पे लिखा 4 टर्म्स को proportion में. अब next आपको मालूम है product of extremes यानी 4 into x is equal to product of mean 6 into 8. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे then we have x equal to 12. so that means fourth proportion is 12. third proportional to 12, 18 is. अब आपको 12 और 18 का थर्ड प्रोपोर्शन चाहिए तो let third proportion is x. so therefore 12 is to 18 is equal to 18 is to x. हमने क्या किया 18 मिडिल हो जाएगा तो उसको रिपीट किया है 12 is to 18 is equal to 18 is to x. अगेन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी 12 into x is equal to product of means 18 into 18. now 12 को क्रॉस कर देंगे तो x equal to 18 into 18 upon 12 which is 27. so therefore third proportion is 27. the mean proportion between 25 and 81. question number 3 आपको बोला गया what is the mean proportion of 25 and 81. तो फॉर्मूला सबको मालूम है mean proportion is equal to root of AC. so therefore mean proportion is equal to root of 25 into 81. और आपको मालूम है 25 के लिए 5, 81 के लिए 9 यानी 9 5 जा 45. तो mean proportion is 45. the numbers which has the same ratio to 26. आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका रेशियो 26 के साथ सेम है as that 6 has to 13. जैसा कि 6 का किसके साथ है 13. तो let number is x. तो रेशियो ऑफ x टू द 26 यानी कि x into x is to 26 is equal to 6 is to 13 यानी कि नेक्स्ट रेशियो. अगेन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम is equal to product of mean. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन then we have 12. तो वो रिक्वायर्ड नंबर is 12. नेक्स्ट the fourth proportional to 2a square c is. तो अगेन we consider fourth proportional is x. So therefore 2a is to a square is equal to c is to x. Now again cross multiplication से पहला again product of extreme is equal to product of mean. Now we cross multiply 2a in the denominator. So therefore x equal to ac upon 2. तो fourth proportional is ac by 2. तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास थे first 5 questions of exercise 1.1b. तो सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ आप जरा प्रॉपर्टीज को पहला ठीक से बाय हार्ट करें.
problem number 6. If four numbers 1 upon 2, 1 upon 3, 1 upon 5 and 1 upon x are in proportion, then x is. तो सिंपल अपने को फोर नंबर्स मिले डिनोमिनेटर के फॉर्म में और वो बोल रहा है these are in proportion, then what is x? तो सिंपल if these four terms are in proportion, then we have to write 1 upon 2 is to 1 upon 3 equal to 1 upon 5 is to 1 upon x. So but 1 upon 2 is to 1 upon 3 is equal to 1 upon 5 is to 1 upon x अगर है तो फर्स्ट इंटू लास्ट यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू सेकंड इंटू थर्ड यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मीन. तो 1 अपॉन 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन 15. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 15 इज इक्वल टू 2x, देयरफॉर x इक्वल टू 15 अपॉन 2. तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 12x स्क्वायर एंड 27y स्क्वायर. एज यूजुअल जैसा भी हमने पहले भी फाइंड आउट किया, मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू क्या बताया था रूट ऑफ a इंटू सी. यानी कि जो दो नंबर्स का मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है आप उनका मल्टीप्लाई करें, देन वी टेक स्क्वायर रूट. तो देयरफॉर एमपी यानी कि मीन प्रोपोर्शन इक्वल टू 12x स्क्वायर इंटू 27y स्क्वायर. और अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लें 324 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 324 इज 18, square root of x square x and square root of y square is y. So therefore mean proportion is 18xy. Now question number 8. If a is equal to b upon 2 is equal to c upon 5, then a is to b is to c is. Now we have a is equal to b upon 2 is equal to c upon 5. That term is also written as a upon 1 is equal to b upon 2 is equal to c upon 5. तो हमने चेंज क्या किया, जो सिर्फ a दिया था इट इज राइट इन फ्रैक्शन फॉर्म a अपॉन 1. तो a का करस्पॉन्डिंग क्या है 1, b के लिए 2 एंड c के लिए 5. तो देयरफॉर a is to b is to c is 1 is to 2 is to 5. क्वेश्चन नंबर 8. आफ्टर दैट प्रॉब्लम नंबर 9. if a upon 3 is equal to b upon 4 is equal to c upon 7, then a plus b plus c upon c is. तो सिंपल आप a के करस्पॉन्डिंग 3, b के करस्पॉन्डिंग 4 और c का करस्पॉन्डिंग 7 रिप्लेस कर लेंगे. तो therefore a plus b plus c upon c, 3 plus 4 plus 7 upon 7, 14 upon 7 which is equal to 2. तो ये था प्रॉब्लम नंबर 9. इसी तरह का क्वेश्चन हमने रेशियो में कंप्लीट किया था. तो ये हमारे पास नेक्स्ट 10. if p upon q is equal to r upon s is equal to 2.5 is to 2.5 upon 1.5, then ps is to qr is. तो हमको फाइंड आउट करना है ps is to qr. तो सिंपल हमने सिर्फ नोट किया p अपॉन q इज इक्वल टू r अपॉन s, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे ps इज इक्वल टू qr. दैट मींस अगर आप qr को अपोजिट शिफ्ट कर दें तो क्या आ जाएगा ps अपॉन qr और यहाँ पे क्या रह जाएगा 1. आफ्टर दैट 1 इज रिटन एज 1 अपॉन 1. आप 1 को लिख सकते हैं 1 अपॉन 1. तो देयरफॉर ps इज टू qr इज इक्वल टू 1 is to 1. तो जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो क्या होगा 1 is to 1. नाउ प्रॉब्लम नंबर 11. if x is to y is equal to z is to w is equal to 2.5 is to 1.5, then value of x plus z upon y plus w. दो तरीके से कंप्लीट किया जा सकता है, एक तो एरेंडो रूल या फिर जो मैंने डायरेक्टली लिया है x plus z upon y plus w. x के करस्पॉन्डिंग 2.5, z के करस्पॉन्डिंग अगेन 2.5, फर्स्ट सेकंड y है, w भी सेकंड है. तो y के करस्पॉन्डिंग सेकंड नंबर 1.5 और w का करस्पॉन्डिंग सेकंड नंबर 1.5 रिप्लेस कर देंगे. तो 2.5 प्लस 2.55, 1.5 प्लस 1.53. तो देयरफॉर आंसर इज x plus z upon y plus w is equal to 5 upon 3. तो ये हमारे पास नेक्स्ट. और अगर हम डायरेक्टली भी लिखना चाहते तो बाय द एरेंडो रूल we can write 2.5 upon 1.5, वापस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल एंड 5 से कैंसिल करते ऊपर 5 नीचे 3 आता तो भी आंसर आता 5 upon 3. नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 12. 5x minus 3y divided by 5y minus 3x is equal to 3 upon 4, then value of x is to y is. तो आपको ये एक फ्रैक्शन गिवन है या आपके पास और x is to y पूछा है. तो गिवन 5x minus 3y is upon
5y माइनस 3x इज इक्वल टू 3/4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे 4 और 3 के साथ, तो 5x माइनस 3y इंटू 4, 3 इंटू 5y माइनस 3x मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x माइनस 12y इज इक्वल टू 15y माइनस 9x। आप इसी के अकॉर्डिंग जैसा मैंने एरो मार्क किया है रीअरेंज कर लें, तो 20x प्लस 9x 15y प्लस 12y। आफ्टर दैट 29x इज इक्वल टू 27y, y को आप लेफ्ट में क्रॉस कर दें, 29 को राइट में, तो x अपॉन y इज इक्वल टू 27 अपॉन 29। तो फर्दर कैंसिलेशन इज नॉट टू बी पॉसिबल, देयरफॉर x इज टू y इज इक्वल टू 27 इज टू 29। तो ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमने जो लिया था 12। क्वेश्चन नंबर 13, if a is to b is equal to 3 is to 2 and b is to c is equal to 3 is to 5, then a is to b is to c। हमने सेम क्वेश्चन पहले भी कंप्लीट किया, रेशियो में भी कंप्लीट किया था। अब कैसा, आपके पास पहला गिवन है is to b is equal to 3 is to 2 and second ratio is b is to c is equal to 3 is to 5। तो here b is common। अब फर्स्ट जो है आप उसमें देखें b के करस्पॉन्डिंग 2 दिख रहा है और सेकंड में b का करस्पॉन्डिंग 3 दिख रहा है, तो अपोजिट मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट इज मल्टीप्लाइड बाय अपोजिटली 3 एंड सेकंड इज मल्टीप्लाइड बाय अपोजिट 2। तो ये हमारे पास, तो therefore a is to b is 9 is to 6 and b is to 6, c is 6 is to 10। अब अगर आप इनको कंबाइन कर दें, क्योंकि b कॉमन हो गया दोनों में 6, तो a is to b is to c 9 is to 6 is to 10। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, if x upon 2 is equal to y upon 3 is equal to z upon 7, then value of 2x minus 5y plus 2z upon 2y is। तो हमको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो सिंपल 2x माइनस 5y प्लस 2z अपॉन 2y, x का करस्पॉन्डिंग वैल्यू 2 रिप्लेस करेंगे, y के लिए 3 एंड z के लिए 7। सिंपल कैलकुलेशन है, आप कर लेंगे 3 अपॉन 6 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। अगेन एक बार 13 टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, if x is to y is equal to 2 is to 3 and y is to z is equal to 4 is to 3, then x is to y is to z is। तो अगेन x is to y is 2 into 3, हमारे पास है 2 is to 3 and y is to z is 4 is to 3। तो अब अगर आप देखें फर्स्ट में y के लिए 3 है, सेकंड में 4 है, तो अपोजिट मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट को हमने 4 से और सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो फर्स्ट इज मल्टीप्लाइड बाय 4, देन वी हैव x is to y is 4 8 is to 12 and second is multiplied by 3, तो y is to z is equal to 12 is to 9। अब आप देख सकते हैं y दोनों में 12 हो गया है, तो therefore x is to y is to z is 8 is to 12 is to 9। तो इसका मतलब x is to y is to z किसके इक्वल आ जाएगा, 8 is to 12 is to 9 के इक्वल आएगा। तो ये थे हमारे पास फर्स्ट 15 क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं।